Hello dear students. In this video we are going to discuss about the topic female reproductive system. So let's first quickly draw it. Female reproductive system comprises of, first there will be pair of ovaries, second pair of fallopian tube, it's also called as oviduct, third uterus, and this portion is vagina, and last portion is external genitalia. Right, so these are all the parts which are associated with female reproductive system, in which we have to discuss only this much in class 10th, because there isn't any point written about external genitalia. You study this in class 12th. Okay, so let's first draw these portions quickly so that we can label them accordingly in the diagram, and we will also get to know how to draw the diagram of female reproductive system. Okay, so let's start. See, in order to understand, we sometimes draw it little bit hypothetical, even though actually जो एक्चुअल डायग्राम होती है ना इसकी, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन समझने के पर्पज़ के लिए हम इसको थोड़ा ऐसा करते हैं ताकि हम समझ जाए इसके पार्ट्स क्या क्या है, बस उसके लिए. अब मैं इसको थोड़ा लेबल भी करता हूँ साथ साथ. फिर and basically uterus is 3 layer. The outer one is the red color, और ये सबसे inner वाला मैं बना रहा हूँ, it's having like this type of shape, margin type shape. Okay, और यही चीज़ें यहाँ से भी है. Okay, see. Now let's label them one by one. This portion which I made with the blue color, this is right ovary, and this portion is left ovary, and this portion from here till here, this portion is called as fallopian tube. It has 3 parts. This part is called as isthmus,
This portion is called as ampulla, and this portion, I will label it over here. This portion is a funnel shape. It is called as infundibulum. 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 And this infundibulum, इसके मार्जिन पे आप देख रहे हो ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है. इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फिम्ब्रे. दे आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे. ओके, and this portion is called as uterus, and this portion from here to here, it's a neck of uterus which is called as cervix, and this cervix has internal sphincter and external sphincter. तो इसका जो अंदर वाला ओपनिंग है वो यूट्रस की तरफ खुलता है और बाहर वाला ओपनिंग इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरफ खुलता है जिसका नाम है वेजाइना. तो मेल अपने पेनिस के ज़रिए स्पर्म्स को यहाँ डिपॉजिट करता है, फिर वो खुद ब खुद ट्रैवल करके सर्विक्स के होते होते यूट्रस में जाते हैं, और फिर यूट्रस से जाने के बाद अगर इस ओवरी ने एग रिलीज़ किया होता है तो वो एग यहाँ पे रहेगा, तो स्पर्म्स जाके उसको फर्टिलाइज़ करेंगे, या फिर अगले महीने ये ओवरी रिलीज़ करेगी एग, तो फिर वो एग यहाँ पे होगा, तो फिर स्पर्म्स जाके उसको फर्टिलाइज़ करेंगे. क्लियर? सो दिस इज़ द डायग्राम. और ये जो रूफ है ना यूट्रस का, यूट्रस में मैंने 3 लेयर्स बनाई. सबसे आउटर वाली लेयर को मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ. ये आउटर वाली लेयर है यूट्रस की जिसका नाम पेरीमेट्रियम है, और ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे बनाया, ब्लू कलर से ब्लू लाइनिंग दिखाते, ये सेकेंड लेयर है. दिस इज़ कॉल्ड एज मायोमेट्रियम. और सबसे अंदर वाली वेवी थिक ब्लड की जो बनी है, दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम. और ये रहे फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स. सबसे जिसके पास ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को फिम्ब्रे कहते हैं, और उस पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब को इन्फंडिब्यूलम कहते हैं. ठीक है, इट्स अ फनल शेप. और उसके बाद swollen end, this portion is called as ampulla, and the straight and narrow duct is called as isthmus. तो isthmus, ampulla और infundibulum को मिला के बोलते हैं fallopian tube. This portion is called as uterus, and this is the neck of uterus which is called as cervix. ये इसकी internal opening, ये external opening. 2 openings के बीच में जो जगह है, this is called as cervical canal, and this portion is called as vagina. एक और डायग्राम आप देख सकते हो. इस डायग्राम में अभी ये ओवरीज है, ये फैलोपियन ट्यूब के फ्रंट पोर्शन के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको फिम्ब्रे कहते हैं, एंड दिस इज़ ऑल फैलोपियन ट्यूब, एंड दिस पोर्शन इज़ यूट्रस. ओके, एंड दिस इज़ सर्विक्स, एंड दिस पोर्शन इज़ वेजाइना. And you can check this diagram and try to label it on your own. Okay, this is one more diagram over here, and in actual reality में skeleton को दिखाने के बाद भी कि बॉडी के अंदर किस तरह ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. एंड दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर ऑफ फीमेल. इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर इसके नीचे होता है फीमेल के केस में, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऊपर. ओके, सो नाउ the parts which we said female reproductive system comprises of, let's discuss those parts one by one. उसमें से pair of ovaries है, pair of oviducts है जिनका दूसरा नाम fallopian tube है, fallopian tube है. उसके बाद थर्ड पार्ट है यूट्रस, फोर्थ पार्ट है वेजाइना, फिफ्थ पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम वुल्वा भी कहते हैं. तो चलिए देखते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं पॉइंट्स इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट ऑर्गन के बारे में जिसका नाम है ओवरी. जिस तरह हमने टेस्टिस में पढ़ा, इसी तरह ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, इसका मतलब ये प्रेजेंट होगी बाय बर्थ. ये क्या करती है? ये 2 काम करती है. एक, फीमेल गैमीट बनाना जिसको हम ओवम कहते हैं या फिर एग कहते हैं. ठीक है ना. और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स ये सिक्रेट करती है ओवरी. उसमें से कौन कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. ये 2 हार्मोन्स खास है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन. और एक फीमेल गैमीट जिसका नाम है ओवम. ये 2 काम आपको 10th क्लास में याद रखना है. एक तो फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करना और फीमेल गैमीट बनाना.
ये दोनों ओवरीज जो होती है ये एब्डोमेन के अंदर लोकेटेड होती है, वन ऑन द लेफ़्ट साइड अनदर ऑन द राइट साइड, ठीक है। और ओवरी की लंबाई इतनी होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये जो ओवरी है, इन दिस डायग्राम सी दिस ओवरी, इट इज़ कनेक्टेड टू द यूट्रस वॉल। हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस इज़ अ लिगामेंट। इस लिगामेंट की वजह से ये ओवरी वॉल के साथ कनेक्टेड होते हैं और पीछे से एब्डोमेन के वॉल के साथ भी, पेल्विक वॉल के साथ भी जुड़ी होती है, ठीक है। और यूट्रस के साथ भी जुड़ी होती है लिगामेंट्स के ज़रिए। तो आपको डायग्राम में यूट्रस के साथ दिखाई देगा, पीछे वाला साइड आपको नज़र नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, तो जो ये ओवरी है, दिस ओवरी ओवर हेयर, इस ओवरी के अंदर होते हैं प्रेजेंट। इस ओवरी को अंदर से हम देखते हैं तो 2 रीजन्स बनते हैं। इसका आउटर वाला रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स, ठीक है। उस कॉर्टेक्स में क्या होते हैं? अनराइप एग्स। मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ कि ओवरी का जो आउटर वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। यानी इस कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा? फॉलिकल्स होंगे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फॉलिकल्स आर अनराइप एग्स, फिर टेरिशरी फॉलिकल और फिर मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल बड़ा होगा और उसके अंदर एग डेवलप हो चुका होगा। फिर जब ये मैच्योर फॉलिकल बर्स्ट हो जाता है, इससे ये एग रिलीज होके इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। ओवरी से एग का रिलीज होना, इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, ठीक है। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस पोर्शन को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इज दिस क्लियर? सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के यूजुअली 14th डे को होता है, बट कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि उसी दिन हो, इट कैन वैरी। तो हम रिमेम्बरेंस पर्पज़ के लिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम स्टडी करते हैं, 28 डेज़ होते हैं, ठीक है। इन 28 डेज़ में से 14th डे को ही एग रिलीज़ होता है ओवरी से, और वो एग तब तक डेवलप हो रहा होता है। किस तरह से? पहले वो प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टेरिशरी फॉलिकल बनता है। जिस तरह आप जियोग्राफी में पढ़ते हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इसी तरह यहाँ पे ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस है एग के डेवलपमेंट के। पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टेरिशरी फॉलिकल, फिर मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। और फिर जब ये मैच्योर हो जाता है, ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है और इसके अंदर जो एग डेवलप हो रहा होता है वो बाहर निकलता है। उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एग का रिलीज़ होना ओवरी से, दैट इज़ कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, और ये यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे को होगा। तो अगर इस ओवरी ने एग रिलीज़ किया होगा तो वो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ होगा। अगर इस ओवरी ने रिलीज़ किया है तो वो यहाँ होगा। फिर अगर इस फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म होगा, यानी इसका मेल के साथ इंटरकोर्स होगा, रिलेशनशिप होगा, तब जाके स्पर्म बॉडी के अंदर जाके इस एग के साथ फ्यूज़ होने के चांसेस है, और तब जाके फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट्स कॉल्ड एज जाइगोट। अदरवाइज if the sperm will not be there, if a sperm will not come in contact with ovum, then this egg will degenerate within 24 hours. 24 आवर्स के अंदर अंदर ये एग डिजनरेट हो जाएगा अगर इसका कांटेक्ट स्पर्म के साथ नहीं हुआ। और अगर इसका कांटेक्ट स्पर्म के साथ होगा तो फिर ये बनाएगा जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होके बनाएगा एम्ब्रियो। फिर जब एम्ब्रियो में सेल्स का नंबर 64 सेल्स जब बन जाएंगी तो ये एम्ब्रियो इस यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। तब तक ये आगे 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 बढ़ता जाएगा। पहले 2 सेल्स, फिर 4, फिर 8, फिर इसी तरह मैं इस डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे एग का कांटेक्ट जो ही स्पर्म के साथ होता है तो फिर उस एग के स्पर्म के कांटेक्ट में आने से उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और पहले बनता है जो स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड जाइगोट, इट इज़ अ सिंगल सेल। फिर इसमें डिवीजन होके 2 सेल्स बनेंगी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ठीक है। 8 से 16 वाला स्टेज जो इस एम्ब्रियो का होता है,
इट रिजेंबल्स लाइक ऑफ मलबरी। जो हम मलबरी खाते हैं ना, आपने देखा होगा मलबरी ऐसा होता है और उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, ये छोटे छोटे दाने। तो ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये उस मलबरी के ऊपर जो ये सेल्स जैसी होती है ना, वैसे ही एम्ब्रियो की इस स्टेज के दौरान शेप होती है। इसीलिए इस 8 से 16 सेल स्टेज को मोर्यूला कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक दैट ऑफ मलबरी। फिर 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, फिर 64 सेल यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इस 64 सेल स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। 64 celled embryo is called as blastocyst। और ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है, तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूँगा, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट with the wall of यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट जब यूट्रस के वॉल के साथ होता है इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं क्या, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और ये इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिनों बाद होता है। बात आई समझ? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एग का कांटेक्ट जब स्पर्म के साथ होगा उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन इस एम्फ्यूला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है दैट्स कॉल्ड जाइगोट। फिर उस जाइगोट में डिवीजन होके 2 सेल स्टेज आ जाएगा, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर 32 सेल, फिर 64 सेल। जब ये 64 सेल का स्टेज बन जाता है तो उस स्टेज को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये 64 सेल एम्ब्रियो है, ओके। और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हो जाता है। तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है, फीमेल इज सैड टू बी प्रेग्नेंट। तब जाके बोला जाता है कि हाँ फीमेल प्रेग्नेंट है, जब ये इम्प्लांटेशन हो जाता है। और फिर उसी दौरान से ही डॉक्टर उसको सीढ़ियाँ चढ़ना, फ्लाइट में कहीं जाना या ऐसे व्हीकल्स में ट्रैवल करना जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो सके, तो ये अगर ये ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हो चुका है यूट्रस के वॉल के साथ, ये डिटैच भी हो सकता है, क्योंकि पहले इसका जो अटैचमेंट होता है वो टेम्पररी होता है। इसीलिए अगर उस दौरान मदर किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गई, वो गिर गई सीढ़ियों से या दौड़ने लगी, ऐसा कुछ, तो ये डिटैच हो सकता है। इसीलिए जब किसी का ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंटल इंजरी से ये डिटैच हो जाए, उसी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मिसकैरेज हो गया। आपने सुना होगा कि इसका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि जो उसका जो ब्लास्टोसिस्ट था जो यूट्रस के वॉल के साथ अटैच हुआ था, फिर वो फिर से डिटैच हो गया और फिर ये जुड़ नहीं पाता। क्लियर? दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज मिसकैरेज। चलते हैं आगे। अब इनके पॉइंट्स हम पढ़ते हैं कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो पार्ट्स है, जैसे ओवरीज है, ये क्या क्या करते हैं। तो ओवरी का जो आउटर वाला पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, और मिडल वाला पोर्शन कहलाता है मेड्यूला। बहुत ही आसान है। मेड्यूला के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड सप्लाई इसी में चलती है मेड्यूला के अंदर। और कॉर्टेक्स में फिर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टेरिशरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, यानी फॉलिकल्स एट डिफरेंट स्टेजेस वो कॉर्टेक्स में होते हैं। और मेड्यूला में सिर्फ ब्लड वेसल्स होती है। बात आई समझ? ये लिख दिया है मैंने नोट्स में। कॉर्टेक्स कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस। और ओवरी के अंदर जो ये फॉलिकल है, जिस तरह हम कहते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो ओवरी के अंदर ये फॉलिकल ही माना जाता है बेसिक यूनिट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जैसे नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, सिमिलरली सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। और हर एक फॉलिकल में मल्टीपल लेयर्स होती है सेल्स की। ऐसे ये एक वॉल, ऐसे एक और वॉल, ठीक है।
मल्टीपल सेल्स की लेयर होती है इस फॉलिकल के इर्द, और इसके अंदर जो ये एग पल रहा होता है, एग डेवलप हो रहा होता है, ये फिर ओवरी से रिलीज़ होना शुरू होता है फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। और हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी से फीमेल में शुरू होगा। प्यूबर्टी से जो ये साइकिल शुरू होता है इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी मंथ 1 ovum will be produced every month. You got my point? In menstrual cycle, every month 1 ovum is being produced. चलते आगे, फिर जब ये ओवरी से एग रिलीज होता है, वो जाता कहाँ पे है? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, और फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है, और ये एक मस्क्यूलर ट्यूब है जिसमें एग चलता है। कहाँ से कहाँ? ये एग को कैरी करता है फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी वैसा एनवायरनमेंट होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट्स वाई अगर कहीं पे हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करनी है, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है, तो वहाँ पे ट्यूब्स के अंदर वैसी ही कंडीशन मेंटेन की जाती है जैसे कि एक फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। क्लियर? क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। और फैलोपियन ट्यूब की, जैसा मैंने आपसे कहा, इसके 3 पार्ट्स है। इस फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट ओवरी के नज़दीक है उस पार्ट को इन्फंडिब्यूलम कहते हैं, और ये फनल शेप का है। और इसी इन्फंडिब्यूलम के एजेस जो है वो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें है, उनको हम फिम्ब्रे कहते हैं। और ये फिम्ब्रे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ ओवरी, और ये फिम्ब्रे इस ओवरी को सराउंड करे रहते हैं, ताकि जो ही ओवरी से एग रिलीज़ हो, ये फिम्ब्रे उसके इर्द गिर्द ऐसे अपनी तरफ उसको सक करते उस एग को, और ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ एग। सो ओवरी से जब एग रिलीज़ हुआ, वो एग कहीं और न जाए, इसलिए उस एग को फैलोपियन ट्यूब में ले जाने का काम, डायरेक्ट करने का काम इन फिम्ब्रे का है। इज दिस क्लियर? और फिर ये इन्फंडिब्यूलम जो है, इट लेड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज़ कॉल्ड एज एम्फ्यूला। क्लियर? जैसे दिस वॉज फिम्ब्रे एंड दिस पोर्शन वॉज इन्फंडिब्यूलम। फिर ये इन्फंडिब्यूलम खुलता है ना एक वाइडर पोर्शन की तरफ, इस वाइडर पोर्शन का नाम है एम्फ्यूला। फिर एम्फ्यूला आगे जाके खुलता है इसमें नैरो पोर्शन में, उसका नाम है इस्थमस। और इनके अंदर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। उन्हीं सीलिया के बीट करने की वजह से ही एग या जाइगोट आगे आगे डेवलप होकर आगे आगे मूव करता है और फाइनली पहुंचता है यूट्रस के अंदर। क्लियर? सो इनका काम ओवम को या एग को या फिर जाइगोट को यूट्रस तक पहुंचाना है। और यूट्रस क्या है? अब यूट्रस एक सिंगल ऑर्गन है, इसको वूम भी कहते हैं। और यूट्रस की शेप जो होती है, जो हम पेयर खाते हैं, पेयर की शेप यूजुअली ऐसे होती है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। पेयर की शेप दिस इज अ पेयर शेप। अब इसी को उल्टा कर लो, इन्वर्ट कर दो, यानी ऊपर से ब्रॉड, नीचे से नैरो। ठीक है? तो यूट्रस जो होता है वो इन्वर्टेड पेयर होता है, यानी यूट्रस की शेप ऐसी नहीं है बल्कि ऐसी है, यानी ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से नैरो है। तो नैरो पोर्शन जो यूट्रस का है उसी को हम सर्विक्स कहते हैं। क्लियर? और ये ओवरी जो होती है वो पेल्विक वॉल के साथ भी, यानी पीछे एब्डोमेन के वॉल के साथ भी और यूट्रस के वॉल के साथ भी अटैच होती है बाय लिगामेंट्स। क्लियर? इट्स अटैच्ड बाय लिगामेंट्स। और सर्विक्स जो है, सर्विक्स में 2 ओपनिंग्स है, एक यूट्रस की तरफ खुलती है, ठीक है, और दूसरी वजेना की तरफ खुलती है। तो इन 2 ओपनिंग्स के बीच में जो ये जगह है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल। और जब सर्विक्स और वजेना को मिलाएंगे हम, यहाँ से ही तो बच्चा डेवलप होके बाहर जाएगा, यानी इसी पैसेज से ही बच्चा डिलीवर होता है आगे की तरफ। इसलिए सर्विक्स प्लस वजेना इज टुगेदर कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। ओके? और यूट्रस के अंदर, यूट्रस के वॉल में 3 लेयर्स होती है। सबसे आउटर वाली लेयर कहलाती है पेरीमेट्रियम, मिडल वाली कहलाती है मायोमेट्रियम,
और सबसे अंदर वाली कहलाती है एंडोमेट्रियम। इनर ग्लैंडुलर लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। और इस मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है अगर बेबी की डिलीवरी का टाइम हो, ओके। और पेरीमेट्रियम तो बस प्रोटेक्शन के लिए। और इसी एंडोमेट्रियम में ही हर महीने ये थिक ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड आउट होता है और फिर अगले महीने फिर से बनेगा। लेकिन जिस साल फीमेल प्रेग्नेंट होगी उस साल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का उस साल सस्पेंड हो जाना इट्स एन इंडिकेशन दैट फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, उसका एग फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है। और ये मायोमेट्रियम जो होता है मिडल लेयर, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करता है जब बेबी की डिलीवरी का टाइम है। इसी की स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही लेबर पेन उसको कहते हैं। देन यूट्रस के बाद, सर्विक्स के बाद जो आखिरी पोर्शन है दैट इज़ वजाइना। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 7 to 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। और इसके टिश्यूज़ जो होते हैं इलास्टिक होते हैं, यानी स्ट्रेचेबल होते हैं। और इसके अंदर ही मेल का पेनिस एंटर होता है कॉपुलेशन के दौरान। कॉपुलेशन के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं इंटरकोर्स, मेल और फीमेल का सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल कांटेक्ट। और जिस दौरान मेल का पेनिस फीमेल के वजाइना में एंटर होके अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट करेगा, ठीक है। क्योंकि वो मेल के पेनिस से जो फ्लूइड रिलीज होगा उसको सीमेन कहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को, डिपोजिशन ऑफ सीमेन को, डिपोजिशन ऑफ सीमेन, इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन भी कहते हैं। और फिर इसी इंसेमिनेशन की वजह से जो फ्लूइड फीमेल के वजाइना में रिलीज़ होगा, फिर वो फ्लूइड में उसमें स्पर्म स्विम करते करते आगे जाएंगे एंड देन दे कैन मूव टू द यूट्रस, फ्रॉम यूट्रस टू द फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे अगर उनको एग मिला तभी जाके फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। अच्छा, आखिरी बात, मेल के अंदर आपने देखा था कि जो यूरिथ्रा था, यूरिथ्रा वॉज द कॉमन पैसेज, कि उससे स्पर्म भी फ्लो हो रहा था, यूरिन भी फ्लो हो रहा था। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ओपनिंग अलग है, यानी यूरिथ्रा एक डिफरेंट ओपनिंग है और वेजेनल ओपनिंग डिफरेंट है। इज दिस क्लियर? यानी वजेना की ओपनिंग अलग है और यूरिथ्रा की ओपनिंग अलग है। तो वजेना नीचे अगर है और उसके ऊपर जो ओपनिंग है वो यूरिथ्रा की है, यानी यूरिन फ्लो की ओपनिंग अलग है और पेनिस के रिसीव करने के लिए जो ऑर्गन है वो अलग है। इन दोनों की ओपनिंग्स अलग है। लेकिन अगर कभी इन्फेक्शन वजेना में हो, that can spread to urethra also, that can cause urinary tract infection also. So I hope this is all clear to you. In these notes, check them one by one. I have written them perfectly according to the class 10th. ओवरी क्या होती है, इसके दो फंक्शन, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, और एक फीमेल गैमीट रिलीज़ करना जिसको हम एग या ओवम कहते हैं। फिर उस एग या ओवम को कलेक्ट करना और आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम ओविडक्ट का होता है, या जिसका दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसके 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद ये एग अगर फर्टिलाइज हुआ तो फिर ये एम्ब्रियो बन जाएगा, फिर पहले जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फाइनली ये पहुंचेगा एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन में जिसका नाम यूट्रस है। और यूट्रस के बाद ये एक मस्क्यूलर ट्यूब में और यूट्रस की नेक को हम सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स के बाद ये ओपन होगा एक मस्क्यूलर ट्यूब में जिसका नाम वेजिना है। क्लियर? और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में आपको क्लास 10th में जानने की ज़रूरत नहीं है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके क्या क्वेश्चंस है, क्या डाउट्स है, प्लीज़ यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो and I will definitely check and try to answer that. See you in the next video.